Good morning, students. Today we'll discuss about the conversion of the various series into exclusive series. That means हम different types of series जो पढ़े हैं, हम different series frequency distribution की various types of series we have discussed. Okay, now let's convert all these types of series into an exclusive series. अब इन हर किसी series को, हर type of series को हम exclusive में convert करेंगे, ठीक है? So it is mandatory to convert the series into an exclusive series. चाहे किसी भी तरह की सीरीज हमें दे रखी है, उन्हें हम एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? वेदर इट इज इंक्लूसिव को हम एक्सक्लूसिव में, ओके? तो इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव कन्वर्जन विल बी देयर. If open-end series, then we will convert it also into an exclusive series. If cumulative frequency series are there or series is given, okay, we will also convert it into an exclusive series. Okay? So ultimately, what we have to do is we have to convert all the types of series into an exclusive series. हमें हर तरह के series को exclusive series में convert करना है, ठीक है? So we are discussing the conversion. Okay? So the conversion. First of all, we are discussing about the conversion of inclusive series, ठीक है? Into किसमें convert करेंगे? Into an exclusive series. हम एक इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करेंगे. दैट मीन्स हमें इंक्लूसिव सीरीज गिवन होगी एंड एक्सक्लूसिव में उसे कन्वर्ट करना है, ठीक है? सो वी हैव टू कीप रिमेंबर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव सीरीज. हमें इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सीरीज की प्रॉपर्टी को याद रखना है, ठीक है? कि भाई इंक्लूसिव सीरीज कौन सी, बाय ऑब्जर्वेशन जो हम देखते थे कि दिस इज एन इंक्लूसिव सीरीज एंड दिस इज एन एक्सक्लूसिव सीरीज. उन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ही हम सीरीज को कन्वर्ट करेंगे. तो inclusive series कौन सी series थी? The series in which the two corresponding limits of two corresponding classes, okay, दो corresponding classes की दो corresponding limits, okay, same नहीं होती है, ठीक है? वो क्या थी? एक inclusive series थी. Whereas exclusive series, the series in which the two corresponding limits of the two corresponding classes are same or equal, ठीक है? उसे हम exclusive series कहते हैं, ठीक है? मीनिंग डिफरेंट था कि एक्सक्लूसिव सीरीज में हर क्लास की अपर लिमिट उसमें से एक्सक्लूडेड होती है. दैट मीन्स हम हर एक क्लास की अपर लिमिट को उसमें काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि वो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट बन जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है? क्योंकि फर्स्ट की अपर सेकंड की लोअर सेम होती है. तो फर्स्ट क्लास की जो अपर लिमिट है उसे फर्स्ट क्लास में काउंट ना करके हम सेकंड क्लास में काउंट करते हैं, ओके? बट इन इंक्लूसिव सीरीज the upper limit of each and every class, the upper limit which is L2 is included in that particular class only, ठीक है? For example, 0 to 4 and 5 to 9, ठीक है? For example, this is an inclusive series. That means the value 4, this is the upper limit of the first class, okay? First class interval की upper limit है. So according to inclusive class property or property of inclusive class, this value will be counted in first class. ये जो value 4 है ये first class में count होगी. इसी तरीके से second class की जो upper limit है 9, ये हमारी count होगी second class में, ठीक है? थर्ड में नहीं count होगी. Whereas in case of exclusive series 0 to 5 and 5 to 10, this is an exclusive series, okay? So according to the property, the two corresponding limits of the two corresponding classes should be equal. So let's check whether these are equal or not. The two corresponding limits, these are the two corresponding limits of the two corresponding classes. ये दो corresponding classes हैं. इन दो corresponding classes की दो corresponding limits हैं. Upper limit of first class and lower limit of second class. These are equal. Okay. And second property says that the upper limit of each class, that is the upper limit of first class which is 5. फर्स्ट क्लास की जो अपर लिमिट है वो 5 है, ठीक है? सो ये जो 5 है, द वैल्यू 5 विल बी काउंटेड इन सेकेंड क्लास, क्योंकि ये 5 जो वैल्यू है वो सेकेंड क्लास की लोअर लिमिट भी है. ये फर्स्ट की अपर ही नहीं है, सिर्फ ये सेकेंड की लोअर भी है, ठीक है? सो ये सेकेंड में काउंट होगी. सो दैट मीन्स एक्सक्लूसिव क्यों कहते हैं? बिकॉज अपर लिमिट ऑफ ईच क्लास इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम दैट क्लास. हर क्लास की जो अपर लिमिट है वो उस क्लास में से एक्सक्लूडेड है, उसमें काउंट नहीं होती है, ठीक है?
And one more thing, we have to convert each and every series into exclusive series. Exclusive series में हमें convert करना है हर एक तरह की series को. Reason? See, in inclusive series, there is a difference between the upper limit of first class and the lower limit of second class. फर्स्ट क्लास की अपर और सेकंड क्लास की लोअर लिमिट में डिफरेंस है, ठीक है. 4 to 5, 0 to 4 तक की सारी वैल्यूज फर्स्ट क्लास में काउंट होंगी, 5 to 9 तक की सारी वैल्यूज सेकंड क्लास में काउंट होंगी. बट व्हाट अबाउट द वैल्यूज बिटवीन 4 to 5? 4 से 5 के बीच में जो वैल्यूज हैं वो कहाँ जाएंगी, उनको कहाँ काउंट करेंगे? वो फर्स्ट क्लास में काउंट होंगी या सेकंड क्लास में काउंट होंगी, हमें नहीं पता. फॉर एग्जाम्पल 4 to 5, 4.1, 4.2, 4.3, ठीक है, 4.4 अप टू 4.9, ठीक है. तो ये वैल्यू, अगर वैल्यू हमारी 4.4, 4.5 या 4.6, 7, 8, 9 तक आती है तो उनको हम किस क्लास में काउंट करेंगे, फर्स्ट में या सेकंड में, ठीक है. ये हमें नहीं पता है क्योंकि फर्स्ट क्लास में तो 0 to 4 की ही वैल्यूज आ रही हैं एंड सेकंड क्लास में शुरू ही 5 से होती है, 5 से शुरू होती है, 5 to 9, ठीक है. रेंज ही 5 to 9 है, ठीक है. सो इन बिटवीन जो वैल्यूज है 4 to 5 के बीच की जो डेसिमल वैल्यूज हैं उनके बारे में हमें नहीं पता है कि उनको हम किस सीरीज में, सॉरी किस क्लास में काउंट करेंगे, ठीक है. सो इट इज नेसेसरी टू कन्वर्ट द इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज. इसलिए इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना जरूरी है क्योंकि सारी वैल्यूज इंक्लूसिव सीरीज में काउंट नहीं होती है. जो डेसिमल वैल्यूज है इंक्लूसिव सीरीज उनको कंसिडर नहीं करता है. सो वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू एन एक्सक्लूसिव सीरीज, ठीक है. सो कैसे करते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्वेश्चन में इंक्लूसिव सीरीज गिवन हो. ओके, दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज. कॉन्टिन्यूस सीरीज की हम बात कर रहे हैं. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज दैट इज अ कॉन्टिन्यूस सीरीज जिसमें वेरिएबल की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं गिवन होती है. वी आर नॉट गिवन विद एन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, इंस्टेड वी आर गिवन अ रेंज ऑफ वैल्यूज. वेरिएबल की एक एब्सोल्यूट वैल्यू 4 या फिर 5 या 10 या 20 ना देके हमें रेंज ऑफ वैल्यूज गिवन होती है, जैसे 0 to 5 या 0 to 10, ठीक है. सो रेंज ऑफ वैल्यूज है, एक एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं गिवन है, ठीक है. वो कॉन्टिन्यूस सीरीज या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज है. एंड along with it the corresponding frequencies are given, और हमें corresponding frequencies भी given होंगी उसकी, ठीक है. तो सबसे पहले इंक्लूसिव सीरीज क्वेश्चन में गिवन होगी एंड वी विल बी कन्वर्टिंग इट इनटू एन एक्सक्लूसिव सीरीज, ठीक है. इंक्लूसिव क्वेश्चन में गिवन होगी और हमें सॉल्व करने के लिए उसे एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना ही करना पड़ेगा. ओके, अदरवाइज गड़बड़ हो सकती है क्योंकि अगर डेसिमल वैल्यूज आ गई तो जैसे इंक्लूसिव में 0 to 4, 5 to 9, 4 to 5 के बीच की वैल्यूज कहीं भी नहीं है. इस तरीके से 9 to 10 की वैल्यूज कहीं भी नहीं होंगी, 9.1, 9.2, 9.3, ठीक है. इसलिए हमें एक्सक्लूसिव में से कन्वर्ट करना है. तो वी आर गिवन विद एन इंक्लूसिव सीरीज, ठीक है. 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, ठीक है. ये वेरिएबल की वैल्यूज हैं. फॉर एग्जांपल दीज आर द मार्क्स इन अ पर्टिकुलर स्टूडेंट, सॉरी इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट द स्टूडेंट हैव स्कोर्ड, ठीक है. फ्रीक्वेंसी एफ 0 to 4 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आए, फ्रीक्वेंसी ये बता दी है, ठीक है. 6, 3, 2, 4, 3, 1. ये फ्रीक्वेंसी कुछ भी लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी जितने बच्चों ने मार्क्स स्कोर किए हैं जिस पर्टिकुलर रेंज में, ठीक है. सो इट इज क्लियरली इट कैन बी क्लियरली ऑब्जर्व दैट इट इज एन इंक्लूसिव सीरीज. क्यों? क्योंकि दो कोरेस्पॉन्डिंग लिमिट्स में डिफरेंस है. फर्स्ट की अपर और सेकंड की लोअर, सेकंड की अपर एंड थर्ड की लोअर में डिफरेंस है. तो ये एक्सक्लूसिव तो नहीं हो सकती क्योंकि एक्सक्लूसिव की प्रॉपर्टी है, क्या है प्रॉपर्टी? The two corresponding limits किसकी? Of the two corresponding classes. दो corresponding classes की दो corresponding limits सेम होनी चाहिए. तो दो corresponding classes क्या है? फर्स्ट क्लास की corresponding class सेकंड होगी, सेकंड की corresponding होगी थर्ड, थर्ड की corresponding होगी फोर्थ, एंड फोर्थ की corresponding होगी फिफ्थ. ओके, तो फर्स्ट एंड सेकंड corresponding है, सेकंड एंड थर्ड corresponding है, so on. ओके, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग लिमिट दो कॉरेस्पॉन्डिंग क्लासेस की कॉरेस्पॉन्डिंग लिमिट, फर्स्ट एंड सेकंड की अपर एंड लोअर सेम होगी, सेकंड एंड थर्ड की अपर एंड लोअर सेम होगी एक्सक्लूसिव के लिए. लेकिन यहाँ पे तो सेम नहीं है,
देखो फर्स्ट की अपर 4 है और सेकंड की लोअर 5 है, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कॉरेस्पॉन्डिंग लिमिट्स ऑफ टू कॉरेस्पॉन्डिंग क्लासेस, ठीक है। सो दिस इज नॉट एन एक्सक्लूसिव सीरीज, दिस इज एन इंक्लूसिव सीरीज, सो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एन एक्सक्लूसिव सीरीज, हमें इसे एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसीज एज इट इज रहेंगी, फ्रीक्वेंसीज को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, we have to convert the series only, okay। तो वेरिएबल की जो रेंज है उसी को हम कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो डिफरेंस है, जिनमें डिफरेंस है, किन में डिफरेंस है, द कॉरेस्पॉन्डिंग लिमिट्स ऑफ द टू कॉरेस्पॉन्डिंग क्लासेस, दो कॉरेस्पॉन्डिंग क्लासेस की दो कॉरेस्पॉन्डिंग लिमिट्स में डिफरेंस है, अपर और लोअर ये सेम होनी चाहिए, एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के लिए ये दोनों सेम होनी चाहिए, तभी वो एक्सक्लूसिव बन सकती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेम बनाएंगे, कैसे, इन दोनों का डिफरेंस, ओके। सो वी हैव टू टेक द डिफरेंस ऑफ द टू कॉरेस्पॉन्डिंग लिमिट्स ऑफ टू कॉरेस्पॉन्डिंग क्लासेस, दो कॉरेस्पॉन्डिंग क्लासेस की दो कॉरेस्पॉन्डिंग लिमिट्स का हमने डिफरेंस लेना है, 5 और 4 कितने का डिफरेंस है, ओके। सो वी हैव टू टेक द डिफरेंस ऑफ L1 लोअर लिमिट ऑफ L1 ऑफ सेकेंड क्लास, L1 ऑफ सेकेंड क्लास माइनस L2 ऑफ फर्स्ट सेकेंड क्लास की तो लोअर लिमिट और फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट का डिफरेंस, L2 ऑफ फर्स्ट क्लास, L1 ऑफ सेकेंड क्लास माइनस L2 ऑफ फर्स्ट क्लास, इस डिफरेंस का हम एवरेज निकाल लेंगे, एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो वी हैव टू डिवाइड द एवरेज बाय 2, एवरेज किसका है, दो कॉरेस्पॉन्डिंग लिमिट्स, दो कॉरेस्पॉन्डिंग क्लासेस की कॉरेस्पॉन्डिंग लिमिट्स का, फर्स्ट की अपर और सेकंड की लोअर का डिफरेंस, ठीक है। तो हाईएस्ट में से लोएस्ट माइनस करते हैं, तो हाईएस्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 है, लोएस्ट क्या है 4, सो L1 ऑफ सेकंड क्लास माइनस L2 ऑफ फर्स्ट क्लास डिवाइडेड बाय 2, L1 ऑफ सेकंड क्लास कितना है 5, L2 ऑफ फर्स्ट क्लास कितना है 4 डिवाइडेड बाय 2, 1/2, दोनों के बीच डिफरेंस है 1 का, तो 1 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 1 इज डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा 0.5, ठीक है। इस 0.5 को हम कहते हैं करेक्शन फैक्टर, दिस इज कॉल्ड द करेक्शन फैक्टर, ठीक है। हमने सीरीज को करेक्ट करना है, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है, तो वी हैव टू फाइंड आउट द करेक्शन फैक्टर, तो हमने करेक्शन फैक्टर फाइंड आउट कर लिया है। अब इस करेक्शन फैक्टर को क्या करेंगे, हर एक पर्टिकुलर क्लास की लोअर लिमिट में से तो माइनस कर देंगे और अपर लिमिट में ऐड कर देंगे, ओके। सो द करेक्शन फैक्टर इज टू बी डिडक्टेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लोअर लिमिट ऑफ ईच एंड एवरी क्लास एंड इज टू बी एडेड इन द अपर लिमिट ऑफ एवरी क्लास, ईच एंड एवरी क्लास। हर क्लास की लोअर लिमिट में से तो करेक्शन फैक्टर माइनस होगा और हर क्लास की अपर लिमिट में करेक्शन फैक्टर ऐड होगा, ठीक है। तो करेक्शन फैक्टर क्या है 0.5, तो करेक्शन फैक्टर को हमने ऐड और लेस करना है, तो कीप रिमेंबर लोअर लिमिट में से तो माइनस होगा और अपर लिमिट में ऐड होगा, ठीक है। हर क्लास की लोअर लिमिट में वही करेक्शन फैक्टर ऐड लेस होगा और हर क्लास की अपर लिमिट में वही करेक्शन फैक्टर ऐड होगा, तो करेक्शन फैक्टर है 0.5। तो फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट क्या है 0, तो 0 माइनस 0.5, तो 0 में से 0.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस 0.5, ओके। तो फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट क्या आई 0, हमारी लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट में से करेक्शन फैक्टर हमने रिड्यूस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो 0 माइनस 0.5 कितना आ जाएगा माइनस 0.5, तो ये 0.5 नेगेटिव वैल्यू बढ़ी है तो माइनस 0.5, ठीक है। तो माइनस 0.5 अपर लिमिट में हमने ऐड करना है, तो फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट को हमने निकाली माइनस 0.5, अपर लिमिट 4 है, अपर लिमिट में करेक्शन फैक्टर ऐड होता है, तो करेक्शन फैक्टर 0.5 है, अपर लिमिट क्या है 4, तो 4 प्लस 0.5 दैट विल बिकम 4.5, 4 में हम 0.5 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा 4.5। सेकेंड क्लास की लोअर हमें हर क्लास की लोअर लिमिट में से करेक्शन फैक्टर को रिड्यूस करना है, लेस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो सेकेंड क्लास की लोअर लिमिट क्या है 5, 5 में से करेक्शन फैक्टर 0.5 माइनस करेंगे तो 5 माइनस 0.5 दैट विल बिकम 4.5, ओके। 5 में से 0.5 माइनस करेंगे 4.5 आ जाएगा। सेकेंड की अपर लिमिट कितनी है 9, अपर लिमिट में क्या करना है करेक्शन फैक्टर को, अपर लिमिट में हमने क्या करना है ऐड करना है, हर क्लास की अपर लिमिट में करेक्शन फैक्टर
ऐड होएगा, ठीक है। तो वी हैव टू ऐड द करेक्शन फैक्टर इनटू द अपर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास। सेकंड क्लास की अपर लिमिट कितनी है 9, करेक्शन फैक्टर कितना है 0.5, तो 9 प्लस 0.5 इट विल बिकम 9.5। सेकंड क्लास कंप्लीट हो गई। इसी तरीके से थर्ड क्लास पे आ जाओ। थर्ड क्लास का लोअर लिमिट है 10 एंड लोअर लिमिट में से हमने करेक्शन फैक्टर को क्या करना होता है, लोअर लिमिट में से करेक्शन फैक्टर सब्ट्रैक्ट होएगा। तो लोअर लिमिट इज 10 एंड करेक्शन फैक्टर इज 0.5, तो 10 में से 0.5 हम रिड्यूस करेंगे, इट विल बिकम 9.5। 10 माइनस 0.5 इट विल बिकम 9.5, ठीक है। थर्ड क्लास की अपर लिमिट है 14, अपर लिमिट में क्या करते हैं करेक्शन फैक्टर का ऐड करते हैं, ठीक है। तो 14 इज द अपर लिमिट एंड करेक्शन फैक्टर इज 0.5, so by adding it will become 14.5। same as with the fourth class, lower limit में से minus 14.5 बन जाएगी लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट में ऐड करोगे तो ये बन जाएगी 19.5। फिफ्थ क्लास लोअर लिमिट में से माइनस अपर लिमिट में ऐड। Now we will check whether the series has become an exclusive series or not। क्या ये इंक्लूसिव सीरीज या पर्टिकुलर सीरीज एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट हो चुकी है या नहीं हुई है, ठीक है, ये हम चेक करेंगे। ओके, तो प्रॉपर्टी क्या है एक्सक्लूसिव की, द प्रॉपर्टी से द टू कॉरेस्पॉन्डिंग लिमिट्स ऑफ द टू कॉरेस्पॉन्डिंग क्लासेस, दो कॉरेस्पॉन्डिंग क्लासेस की कॉरेस्पॉन्डिंग लिमिट, फर्स्ट की अपर एंड सेकंड की लोअर, सेकंड की अपर एंड थर्ड की लोअर, थर्ड की अपर एंड फोर्थ की लोअर, फोर्थ की अपर एंड फिफ्थ की लोअर, दीज आर द कॉरेस्पॉन्डिंग लिमिट्स ऑफ द टू कॉरेस्पॉन्डिंग क्लासेस। क्या ये सेम हुई, फर्स्ट की अपर सेकंड की लोअर सेम है, फर्स्ट की अपर 4.5, सेकंड की लोअर भी 4.5 है, फर्स्ट की अपर 9.5 है, थर्ड की लोअर भी 9.5 है। सो दिस हैज बिकम एन और हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एन एक्सक्लूसिव सीरीज। सो हमने इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में सक्सेसफुली कन्वर्ट कर दिया है। नाउ कम टू द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसीज में कोई चेंज नहीं आएगा, फ्रीक्वेंसीज एज इट इज रहेंगी। तो इसके सामने हम फ्रीक्वेंसीज लिख देंगे, दीज आर द मार्क्स, वेरिएबल है ये, फ्रीक्वेंसी एज इट इज रहेगी। फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी है 3, सेकंड की है 2, 4, 3 एंड 1, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज में कोई चेंज, क्लियर। व्हाइल कन्वर्टिंग इंक्लूसिव इनटू एक्सक्लूसिव द फ्रीक्वेंसीज विल नॉट बी चेंज। इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करते वक्त फ्रीक्वेंसीज में कोई चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसीज एज इट इज रखी जाएंगी, ठीक है, क्लियर। तो फर्स्ट कन्वर्जन इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव। नेक्स्ट वी हैव द सीरीज एन ओपन एंड सीरीज। ओके, एक ओपन एंड सीरीज हमारे पास है। ओपन एंड सीरीज कैसी है, ओपन एंड सीरीज में क्या होता है कि सीरीज की दो एक्सट्रीम वैल्यूज, द टू एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द सीरीज, कीप रिमेंबर हम क्लास की बात नहीं कर रहे हैं, द टू एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द सीरीज आर मिसिंग। सीरीज की दो एक्सट्रीम वैल्यूज मिसिंग है, तो ओपन एंड सीरीज को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो बेसिकली ओपन एंड सीरीज में एक्सक्लूसिव सीरीज ही गिवन होगी, बस उसके जो एक्सट्रीम वैल्यूज मिसिंग होंगी, ठीक है। तो कन्वर्जन हो एन ओपन एंड सीरीज, ओपन एंड सीरीज का कन्वर्जन किसमें, इनटू एन एक्सक्लूसिव सीरीज। ओपन एंड सीरीज को हम एक एक्सक्लूसिव सीरीज में अब कन्वर्ट कर रहे होंगे, ठीक है। ओपन एंड सीरीज कैसी होती है, ओपन एंड सीरीज जिसमें सीरीज की दो एक्सट्रीम वैल्यूज मिसिंग होती है, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट मिसिंग है, बाकी सारी वैल्यूज गिवन होगी। सीरीज की, क्लास की नहीं, ठीक है, सीरीज की एक्सट्रीम वैल्यूज मिसिंग। तो सीरीज की फर्स्ट एक्सट्रीम वैल्यू क्या होगी, इसका स्टार्टिंग पॉइंट से अगर हम 0 से शुरू करें, 0 to 5, वो कहीं से भी शुरू हो सकती है, 10 to 20 भी शुरू हो सकती है, ठीक है। तो 0 to 5 है, 10 to 20, तो 10 to 20 ले लेते हैं। तो हमने कहा स्टार्टिंग पॉइंट, अगर सीरीज 10 to 20 है तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 10, फर्स्ट एक्सट्रीम वैल्यू है, ये मिसिंग है, हमें ये नहीं दे रखा है। ये तो क्या लिखा है, लेस देन 20, लेस देन 20, less than 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and more than 50. So more than 50 that means 50 से ज़्यादा। तो इस क्लास की अपर लिमिट मिसिंग है, फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट मिसिंग है लेस देन 10, 20 से कम, 20 से कम, लेस देन 20।
तो दैट मीन्स लोअर वैल्यू नहीं पता हमें, अपर तो पता है इस क्लास में कितनी वैल्यूज होंगी, लेस देन 20, तो 20 विल बी द हाईएस्ट वैल्यू इन दिस क्लास, इस क्लास की हाईएस्ट वैल्यू है 20, लोअर क्या होगी, इससे कम हो सकती है, हमें नहीं बता रखी, नहीं गिवन है मिस्टेक। लास्ट क्लास है मोर देन 50, 50 इस क्लास में जो भी वैल्यूज होगी वो 50 से ज़्यादा होंगी, तो लोवेस्ट वैल्यू क्या होगी इस क्लास की 50, हाईएस्ट नहीं गिवन है, ठीक है। तो यही दो क्लासेस हमने कंप्लीट करनी है, ओपन एंड सीरीज में दो ही क्लासेस हमें कंप्लीट करनी होती है, एक फर्स्ट क्लास और एक सेकंड क्लास, ये सबसे इजी है। क्या करेंगे, एक कॉमन डिफरेंस लेंगे, ठीक है। सी इन ऑल द क्लासेस व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ ऑल द क्लासेस, द कॉमन डिफरेंस इन ऑल द क्लासेस इज 10, that common difference will become the difference of first and last, okay, जिसको हम क्लास या मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल कहते हैं, ठीक है, क्लास लिमिट्स का जो डिफरेंस था, ठीक है। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड, द कॉमन मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास लिमिट्स, क्लास लिमिट्स का जो कॉमन मैग्नीट्यूड होगा या क्लास साइज होगा, ठीक है, या कॉमन डिफरेंस जो होगा हर एक पर्टिकुलर क्लास का, हर एक पर्टिकुलर क्लास का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो दोनों क्लासेस का डिफरेंस बन जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस हर क्लास का कितना है 10, तो फर्स्ट क्लास का भी जो क्लास साइज होगा या मैग्नीट्यूड होगा क्लास इंटरवल का वो कितना होगा 10, और लास्ट क्लास का भी कितना होगा 10 होगा, ठीक है। तो दोनों ही क्या है कॉमन डिफरेंस, दोनों में हम अप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट क्लास में हमें अपर लिमिट गिवन है, L2 गिवन है फर्स्ट क्लास की, L1 नहीं गिवन है, कॉमन डिफरेंस कितना है 10, लोअर लिमिट निकालने के लिए अपर में से डिफरेंस को माइनस कर देंगे, इससे कम वाली वैल्यू चाहिए ना, लोअर लिमिट हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे अपर लिमिट में से कॉमन डिफरेंस को माइनस कर देंगे, तो अपर लिमिट कितनी है 20, कॉमन डिफरेंस कितना है जिसको हम क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द क्लास इंटरवल, ओके। तो जो कॉमन मैग्नीट्यूड है उस कॉमन मैग्नीट्यूड को हम अपर लिमिट में से माइनस कर देंगे, तो 20 माइनस 10 इट विल बिकम 10, तो लोअर लिमिट भी हमें पता चल गई L1 10 है हमारी, तो फर्स्ट क्लास की L1 10 है और L2 20, तो फर्स्ट क्लास कंप्लीट हो गई। सेम थिंग हम लास्ट क्लास में भी अप्लाई करेंगे, कॉमन डिफरेंस कितना है 10, हर क्लास का कॉमन डिफरेंस 10 है, तो इस क्लास का भी हम मानेंगे इस क्लास का भी डिफरेंस 10 ही रहा होगा, ठीक है। So this is the magnitude of the class interval, common magnitude of the class interval. What we will do to find the lower limit? We have subtracted the magnitude from the upper limit. Lower limit find out करने के लिए हमने क्या किया था, upper limit में से magnitude को minus कर दिया था। अब अपर लिमिट फाइंड आउट करनी है तो लोअर लिमिट में मैग्नीट्यूड ऐड कर देंगे, सिंपल, लोअर के लिए माइनस कर देंगे, नीचे जाना है, ठीक है, तो माइनस कर देंगे, ऊपर जाना है तो लोअर लिमिट में ऐड कर देंगे। तो लास्ट क्लास की लोअर लिमिट हमें गिवन है दैट इज 50, अपर लिमिट हमें निकालनी है, तो कॉमन मैग्नीट्यूड ऑफ द क्लास इंटरवल विल बी एडेड टू द लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट 50 है, कॉमन इंटरवल कितना है 10, ऐड कर लो क्या हो गया 60, अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास, ठीक है। तो कंप्लीट हो गई फर्स्ट क्लास 10 to 20, सेकंड क्लास 20 to 30, थर्ड 30 to 40, फोर्थ 40 to 50 एंड फिर 50 to 60। फिर यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन होगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसीज में कोई चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसीज एज इट इज रहेंगी, ओके क्लियर। तो ये था ओपन एंड सीरीज का एक्सक्लूसिव में कन्वर्जन। नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। चलो मिड वैल्यू सीरीज को पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। एक मिड वैल्यू सीरीज भी है जिसमें हमें मिड वैल्यू भी गिवन है, ठीक है, ऑल मिड वैल्यूज आर गिवन। क्लास इंटरवल ना देखे हर एक क्लास इंटरवल का हमें मिड वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो कन्वर्जन ऑफ मिड वैल्यू सीरीज एंड दी मिड वैल्यू सीरीज, कन्वर्जन ऑफ मिड वैल्यू सीरीज इनटू एन एक्सक्लूसिव सीरीज, ठीक है। सभी तरह की सीरीज को हमने एक्सक्लूसिव में ही कन्वर्ट करना है, कीप रिमेंबर, ओके। तो हमने मिड वैल्यू सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना है, ओके। मिड वैल्यू सीरीज कैसी होगी, हर एक क्लास इंटरवल का हमें मिड वैल्यू गिवन होगी, ठीक है। तो मिड वैल्यू हमें गिवन है एम्बिट मिड वैल्यू, क्लियर। सो इट इज 2.5, 7.5, 12.5, 17.5, 22.5. corresponding frequencies are given 4, 1, 2, 3, 2, हर क्लास की कोरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी आपको गिवन है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें मिड वैल्यूज गिवन है, हमें रेंज निकालनी है, दैट मीन्स एक्सक्लूसिव सीरीज में इसे कन्वर्ट करना है, ओके। सो वी हैव टू फाइंड आउट द रेंज ऑफ डिफरेंट क्लास साइज, सॉरी क्लास इंटरवल।
डिफरेंट क्लास इंटरवल्स की रेंज निकालनी है, या फिर यू कैन से एक्सक्लूसिव सीरीज में इसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मिड वैल्यूज की वजह हमें क्लासेस निकालनी है, एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, हर एक मिड वैल्यू, ठीक है, डिफरेंट मिड वैल्यूज जो भी हमें दे रखी है, ठीक है, उन मिड वैल्यूज का हम डिफरेंस निकालेंगे। मिड वैल्यूज का डिफरेंस, हालांकि वो कॉमन डिफरेंस होगा, सभी का सेम डिफरेंस आएगा। तो 2.5 से 7.5 का डिफरेंस कितना है, 5। 7.5 और 12.5 का डिफरेंस कितना है, 5। ओके, क्लियर। सो वी हैव टू फाइंड आउट। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या है इसकी, फर्स्ट स्टेप क्या है, फाइंड आउट द डिफरेंस और फाइंड आउट द डिफरेंस ऑफ मिड वैल्यूज। मिड वैल्यूज का डिफरेंस निकालें। 2.5 से 7.5 के बीच का कितना डिफरेंस है, 7.5 से 12.5 के बीच का डिफरेंस कितना है, जो कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है, जो कॉमन डिफरेंस होगा वो डिफरेंस हम लेके चलेंगे। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंस है 5 का, हर किसी के बीच में कॉमन डिफरेंस 5 ही है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमने निकाल लिया, डिफरेंस 5 है। सेकेंड, फाइंड आउट, कैलकुलेट द एवरेज, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ डिफरेंस। मिड वैल्यूज के डिफरेंस का एवरेज निकालेंगे। तो 5 इसका डिफरेंस आया था, एवरेज निकालेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 2.5, ठीक है। उस 2.5 को हम क्या करेंगे, ये जो एवरेज निकला, ओके, दिस एवरेज विल बी कॉल्ड एज करेक्शन फैक्टर। इस एवरेज को हम करेक्शन फैक्टर कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप, करेक्शन फैक्टर सेम एज इंक्लूसिव वाला पॉइंट। करेक्शन फैक्टर को एक बार को मिड वैल्यू में से माइनस कर देंगे लोअर लिमिट निकालने के लिए, और एक बार ऐड कर देंगे अपर लिमिट निकालने के लिए, ठीक है। सबट्रैक्ट द करेक्शन फैक्टर, करेक्शन फैक्टर, सबट्रैक्ट द करेक्शन फैक्टर फ्रॉम मिड वैल्यू। मिड वैल्यू में से करेक्शन फैक्टर को माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, टू गेट L1, ठीक है। सबट्रैक्ट द करेक्शन फैक्टर फ्रॉम द मिड वैल्यू टू गेट L1। add the correction factor, add the correction factor to mid value, add the correction factor to mid value to get L2 upper limit। और उस करेक्शन फैक्टर को मिड वैल्यू में ऐड कर दो, अपर लिमिट आ जाएगी। मिड वैल्यू में से करेक्शन फैक्टर को लेस करोगे तो लोअर लिमिट आ जाएगी, ऐड करोगे तो अपर लिमिट आ जाएगी। तो हमारे पास करेक्शन फैक्टर क्या आया, डिफरेंस दिया 5, फर्स्ट स्टेप हो गया, 5 इज द डिफरेंस, एवरेज निकाला 5/2, कितना आया 2.5, ठीक है, ये करेक्शन फैक्टर आ गया। थर्ड स्टेप सबट्रैक्ट करना है, तो मिड वैल्यू में से करेक्शन फैक्टर जो कि हमारा 2.5 है, सबट्रैक्ट करना है। 2.5 माइनस 2.5, करेक्शन फैक्टर भी 2.5 है और मिड वैल्यू भी 2.5 है, तो माइनस करूंगा 2.5 माइनस 2.5 0, लोअर लिमिट आ गई फर्स्ट क्लास की। इसी करेक्शन फैक्टर को नेक्स्ट क्या करना है, ऐड करना है टू फाइंड आउट द अपर लिमिट। सो इसी मिड वैल्यू में ऐड कर दूंगा मैं 2.5, तो क्या आ जाएगा 2.5 प्लस 2.5, 5, ये हमारी होगी फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट। ओके, इसी तरीके से सेकंड क्लास की मिड वैल्यू में एक बार तो करेक्शन फैक्टर को लेस कर दो और एक बार ऐड कर दो। तो 7.5 में से 2.5 माइनस करूंगा 5, ऐड करूंगा 10। थर्ड क्लास है 12.5 माइनस 2.5 10, 12.5 प्लस 2.5 दैट विल बिकम 15, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज होगी, देखो दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग लिमिट सेम है। ओके, तो हो गई कन्वर्ट एक्सक्लूसिव सीरीज में, क्लियर। फ्रीक्वेंसीज एज इट इज रहेंगी, 4 1 2 3 2, ओके, फ्रीक्वेंसीज में कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज पुट करके रख देंगे 4 1 2 3 2, फ्रीक्वेंसीज चेंज नहीं होगी। ओके, सो दिस वाज द कन्वर्जन ऑफ मिड वैल्यू सीरीज इनटू एन एक्सक्लूसिव। तो मिड वैल्यू में हमने इस तरीके से एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर लिया मिड वैल्यू सीरीज को। ओके।